मैं उधर ठीक है जी, ठीक है। लावर 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 रहने दे ਉਹੀ ਉਹ ਤਾਂ लावर ਕਿਹੜਾ ਹਾਂ ਲਿਖਿਆ ਮੈਂ एक मिनट साइड पे ध्यान है जी, ध्यान हो गया भाई आलेक्स सर ठीक है। आया 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 सर चिंता ना लो थल्ले का थोड़ी हाइट थल्ले आप बोलो पहले प्रधान जी पहले बोले प्रधान जी पहले दसो जी ਅੱਜ ਆਏ ਨੇ योग गुरु बाबा जी ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦਾ ਹੜ੍ਹਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਚੱਲਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸ਼ਹਿਰ ਤੇ ਪਿੰਡ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪਾਣੀ ਦੀ ਲਪੇਟ 'ਚ ਆ ਗਏ। ਫਸਲਾਂ ਬਰਬਾਦ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਕਾਰਜ ਸਾਰੇ ਠੱਪ ਹੋ ਗਏ, ਪਸ਼ੂ ਪਾਤ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਾਨੀ ਮਾਲੀ ਨੁਕਸਾਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਸ਼ੀਨਰੀਆਂ ਕਈਆਂ ਦੀਆਂ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੜ ਗਈਆਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪਸ਼ੂ ਪਾ ਸਾਰੇ ਹੜ ਗਏ। ਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ 2 ਨੰਬਰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਆਪਣੀ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਰਾਮਦਾਸ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਦਰ ਤੇ ਸਫਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਦੇਸ਼ ਦਾ ਨੰਬਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਇੱਥੇ ਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਆ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਅਦਰ ਦੈਨ 6 ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਰੋਜ਼ ਮਾਇਆ ਭੇਜਦੇ ਤੇ ਅਸੀਂ 24 ਘੰਟਿਆਂ 'ਚ ਡਿਸਪਲੇ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਮਾਇਆ ਕਿੰਨੀ ਆਈ ਤੇ ਖਰਚ ਕਿੰਨਾ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਖੁਸ਼ੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸਵਾਮੀ ਰਾਮਦੇਵ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ 2-3 ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਵਾਬ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਅੱਜ ਚੇਚੇ ਤੌਰ ਤੇ ਸੱਚਖੰਡ ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਤਮਸਤਕ ਹੋਣ ਆਏ ਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੋਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਲਿਆ, ਉੱਥੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਫਲੱਡ ਰਿਲੀਫ ਫੰਡ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਈਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਉੱਥੇ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰਦਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਇਹ ਕਾਰਜ ਜਿਹੜੇ ਰਾਹਤ ਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਸਰੇ ਅਦਰ ਦੈਨ 6 ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਮੈਂ ਸਵਾਮੀ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਆਸ਼ੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੇ ਨਾਲ ਇਹ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਹਿਤੀ ਕਿ ਜੇ ਹੋਰ ਲੋੜ ਹੋਈ ਤਾਂ ਤਾਂ ਵੀ ਮੈਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਇਹ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਆ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਵੀ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਜਿਹੜਾ 350 ਸਾਲਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਗੁਰਪੁਰਬ 25 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਆਪਣੇ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਸੋ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੋਹਾਂ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ, ਸਰਬੱਤ ਦੇ ਭਲੇ ਦੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੁੱਖ ਜਾਣਿਆ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿਹੜਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਇਆ। ਤੇ ਨਾਲ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹੁੰਚੂਗਾ। ਦਿਲ ਦੀਆਂ ਡਗਾਈਆਂ ਤੋਂ ਬਤੌਰ ਮੁੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਦੂਸਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੁੱਖ 'ਚ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੇ ਰਹੀਏ, ਦੁੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰੂਰ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਈਏ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। माइक थल्ले कर लो थोड़ी। वैसे तो जो गुरु नानक देव जी का उपदेश भी है कि सभी सरबत का भला का उपदेश है, और आज बड़ी अच्छी तस्वीर है कि हिंदू, सिख, ईसाई सभी पंजाब के लिए आगे जो है नजर आ रहे हैं। आप क्या कहना चाहते हैं? सरबत दा भला जो हमारे गुरुओं का उपदेश है, उसमें अपनी एक छोटी सी आहुति डालने के लिए गुरु महाराज ने हमको सेवा दी। ये 1 करोड़ रुपए कोई मायने नहीं रखता है। मैं तो कहता हूँ हम गुरु के सेवक हैं। मात्र सिख कौम ही गुरु की कृतज्ञ नहीं, पूरा हिंदू धर्म, सनातन धर्म, पूरा राष्ट्र गुरु नानक देव जी से लेकर गुरु गोविंद सिंह जी तक और सारे गुरु परंपरा का बहुत कृतज्ञ है। आज हमारे गुरुओं का बलिदान न होता तो हिंदुत्व और सनातन धर्म सुरक्षित ही ना होता। भारत की आज़ादी से लेकर के हमारी जितने भी जनेऊ से लेकर के गौ माता से लेकर के जितने भी हमारे धर्म के मान बिंदु हैं, उनकी रक्षा हमारे गुरुओं ने की। आज यहाँ दरबार साहब में मत्था टिका करके जहाँ गुरु महाराज का आशीर्वाद लिया,
जब जैसे धामी साहब ने बताया, जब मुझे पता लगा शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से जो हमारे सिखों की सबसे बड़ी संस्था है, उसकी तरफ से जब ये सेवा की का एक अभियान अनुष्ठान चल रहा है गुरु महाराज के आशीर्वाद से, तो उसमें यह एक छोटी सी आहुति दी। और जो है जैसे कि कहा कि गुरु तेज बहादुर से लेकर के जितने भी हमारे गुरुओं के पर्व हैं, मैं कोशिश करता हूं सब जगह अपनी हाजिरी भी लगाऊं और कृतज्ञता प्रकट करूं, क्योंकि मैंने जैसे कि बार बार कहता हूं, गुरु नानक देव जी का एक उपदेश में हर रोज अपनी सभाओं में कहता हूं, नाम जपो किरत करो बंट के छको। हम सब गुरु के बंदे हैं, प्रभु के बंदे हैं, हरि के बंदे हैं, और उन्हीं के अनुग्रह से हमारा जीवन है। बाकी इंसान की औकात क्या है। और पिछले दिनों जो यहाँ बाढ़ में जो त्रासदी आई, माना कि पंजाब के लोग गुरु के बंदे बड़े हिम्मत वाले होते हैं, उनमें शौर्य वीरता पराक्रम में बड़े बड़े कष्ट युद्ध उन्होंने सहे, लेकिन फिर भी इस आपदा ने बहुतों का सब कुछ एक तरह से छीन लिया। ऐसे में उनके लिए सेवा के हाथ आगे बढ़ाना, ये हमारा सेवा धर्म है, ये हमारा मानव धर्म है, ये हमारा सिख धर्म भी है, ये हमारा गुरु धर्म भी है, ये हमारा हिंदू धर्म भी और राष्ट्र धर्म भी है। तो इसमें सब मिलजुल करके हाथ बटाएं और ज़्यादा से ज़्यादा सेवा करें। लोगों को इस संकट की घड़ी में लगना चाहिए कि केवल सिख कौम ही नहीं, पूरा हिंदुस्तान उनके साथ खड़ा है। सरकारों की तरफ से जो काम होते हैं वो एक अलग प्रक्रिया है, लेकिन सच्ची सेवा तो जो हमारे यहाँ दरबार साहब की तरफ से की जा रही है, शिरोमणि अकाल गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से की जा रही है, ऐसी सेवाएं वो सच्चे अर्थ में 100% लोगों तक पहुंचती हैं और सच्चे जरूरतमंदों तक पहुंचती हैं। इसलिए इन सेवाओं में पूरी दुनिया में सिख लोगों के पास गुरु महाराज की कृपा से अकूत धन दौलत है। मैंने कनाडा में देखा, अमेरिका में देखा, ऑस्ट्रेलिया में देखा और यूके में, तो जितने भी दुनिया में हमारे समर्थ सिख भाई हैं, मैं सबसे कहूँगा हमारे ये शिरोमणि गुरुद्वारा प्रबंध कमेटी की ओर से जो सेवा का अनुष्ठान शुरू की गया, इसमें सब अपनी अपनी आहुति दें, अपना सहयोग दें। इससे उनके जीवन में भी उनको पुण्य मिलेंगे और सेवा से बड़ा तो कोई पुण्य हो ही नहीं सकता। सेवा और सुमिरन, यही गुरु के दो मुख्य उपदेश हैं। सुमिरन से तो उस अकाल पुरुष पर ब्रह्म परमात्मा की प्राप्ति होती है, एक ओंकार की, और सेवा से हमारा ये जीवन का सौभाग्य जागता है। जैसे आज धामी साहब ने कहा कि श्री गुरु तेग बहादुर जिन्हें हिंद की चादर भी कहा जाता है, उनका शहीदी गुरुपर्व आ रहा है, उसके लिए आपको न्योता भी दिया गया। उसमें हम कृतज्ञता पूर्वक आएंगे और उनके बलिदान, उनकी कुर्बानी, उनकी त्याग तपस्या ये पूरी दुनिया के सामने आएगी। तो आज जिस तरह से दुनिया एक तरह से भोगमुखी हो रही है, वो गुरुमुखी होगी। एक बाबा जी, आपने गऊ का जिक्र किया, जनेऊ का जिक्र किया। सरकारें हमसे कॉस भी लेती हैं, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि बहुत सारे जो आवारा पशु हैं उनके कारण लोगों की जाने जाती है। एक हमारा पंजाबी गायक है, वो भी जिंदगी मौत की लड़ाई लड़ रहा है, हिमाचल में वो जा रहा था। आप कैसे देख रहे हैं बौल्द की लड़ाई? देखो, सब चाहे वो गाय है, चाहे नंदी है, और भी जो भी पशु हैं, उनकी देख रेख होनी चाहिए। सड़कों पर ऐसे एक्सीडेंट तो ठीक नहीं है। और जितने भी कोई भी कुत्ता बिल्ली से लेकर के जो भी आवारा पशु है, उनका भी कोई प्रबंध होना चाहिए। ये धरती केवल मनुष्यों के लिए रहने के लिए नहीं, ये सब जीवों के लिए भगवान ने बनाई। धन्यवाद।